Good evening, everyone. I'm Priyanka Arora, an executive board member of Vidya Mumbai, and I welcome each one of you to this webinar. Professionally, I'm a life and leadership coach, and I also take immense pleasure and pride in being the mentor for the NIS program for Vidya Mumbai. Today, it is my honor and privilege to welcome all of you to the first knowledge series of 2022 by Vidya. This webinar is with an inspiring person, a person who has endeared herself to all of us with her simplicity, humility, along with her tenacity and hard work. She personifies the Vidya core belief that education can empower and transform lives. But before I introduce her at length, let me say a little about Vidya. It was set up in 1985 by Ma'am Rashmi Mishra by teaching 5 girls in her home. It has from then gone on to impact 4 lakh lives, most of which have been with women and girls. Today, we have 78 projects in 5 cities, including Delhi, Gurugram, Bangalore, Mumbai, and Pune. The Vidya dream, like we like to call it, is to see every child get a quality education, every youth an opportunity to succeed, and every woman become economically and socially independent. We at Vidya get inspired by our success stories, like that of Pavan, who qualified IIT mains last year, and Poran, who joined the Indian Army, and Vikram, who is now working for one of the big four. All this and more is possible because of the strength of 350 people, including our teachers and staff, local and foreign, local and foreign volunteers, friends and donors that constitute the Vidya family. We would strongly urge each one of you to join our initiative as a volunteer, donor, or a mentor like me. Let's together create a movement that will transform lives. Let's join hands for the betterment of society. And now, please join me in welcoming the star of the evening, Himani Bundela and her sister Chetna. Himani became the first visually challenged contestant to become a crorepati on KBC of the season and has inspired scores of us with her story. Her infectious smile, positivity, resilience, and a never give up attitude is inspirational to say the least. And her passion for maths and how the magic of numbers can ignite people's minds is deeply motivating. The moderator for the webinar is Ms. Ida Sareen, an educator by passion and profession for the last 25 years, and now the principal of the Vidya School at Gurugram for the last 4 years. So over to you, Ila ma'am, to know more about Himani and her story. Thank you, Priyanka ma'am. Thank you so much. And audience, I apologize for the technical glitch that happened. You couldn't hear Priyanka ma'am clearly. She just introduced the panelist and panelist today, and that is Himani Bundela. I mean, the name needs no introduction. Himani Bundela and her sister Chetna. The name needs no introduction. She was recently featured in KBC, and she did very well over here. And her story is very, very inspiring. So we will be welcome Chetna, welcome Himani. Yes, so, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we'll be starting this webinar by chatting with Himani and Chetna. So आपकी तो लाइफ की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है हिमानी, वेरी इंस्पायरिंग। बहुत छोटे समय में, इतनी यंग एज में आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, और इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी सारी चीजें अचीव कर ली है। तो
ज्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं आपसे चाहूंगी, आपसे और चेतना दोनों को वेलकम करती हूँ। पहले तो इस वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती थैंक हूँ। यू थैंक यू सो एंड मच। थैंक यू मैम। मैं चाहती हूँ कि कुछ अपनी लाइफ की जर्नी की बिगनिंग के बारे में कुछ आप बताएं पहले, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि ओके क्या। बट मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को गुड इवनिंग और पूरी विद्या फैमिली को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ दी और मुझे इनवाइट करने के लिए। यस मैम, जैसे कि आपने बोला अपनी जर्नी के बारे में, तो मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन वाली रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्मूथली लाइफ चल रही हो या स्मूथली कुछ हो रहा हो, हमेशा बहुत सारा स्ट्रगल रहा। जैसे कि मैं छोटा सा आपको एक बताती हूँ, मेरा 2011 में जो एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले की भी मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं थी जब मैं स्टूडेंट थी। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक 2006 में भी आई का ऑपरेशन हुआ था, एक सर्जरी हो चुका था, जिससे मुझे क्लियरली डॉक्टर ने बोला था कि आपको खेलना नहीं है, जंप नहीं करना है, रश वाली जगह से दूर रहना है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो चाइल्डहुड था वो मेरा एक तरह से वहीं पर खत्म हो चुका था। तो बहुत ही ज्यादा वैसी लाइफ चलती रही कि ठीक है चलिए सिंपल अपना स्टडी करना है। फिर जब मैं 2011 में 11th क्लास में, तब एक एक्सीडेंट से कोचिंग जा रही थी मैं, और उसी कोचिंग जाते में एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मुझे बाइक वाले ने टक्कर मारा। तो फिजिकली तो मुझे बहुत ज्यादा चोट था, बट ये नहीं पता था कि आइस पर भी उसका इफेक्ट आया है। और धीरे धीरे जब कुछ टाइम बाद एग्जाम्स क्लोज आ रहे थे, तो मुझे सब फील हो रहा था कि शायद मेरा ग्लासेस का नंबर जो है बढ़ रहा है। तो डॉक्टर पर जब चेक कराने के लिए गया हम लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां जाकर पता चला कि मेरा जो रेटिना है वो डिटैच हो गया है, मतलब अपनी जगह से हट चुका है। तो उसके बाद डॉक्टर ने विद इन 8 मंथ्स मेरी आई को 4 टाइम्स ऑपरेट कर दिया, और थर्ड ऑपरेशन तक मेरी आई में विजन था। लेकिन जो फोर्थ सर्जरी हुआ, और उसमें जबकि ये बोला जा रहा था कि आपका विजन और क्लियर हो जाएगा, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज उस टाइम पर मैं 12th क्लास में आई थी, 2012 की बात है। और व्हेन आई वाज इन 16 ईयर, जब मैं सिर्फ 16 ईयर की थी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। और मैंने साइंस लिया हुआ था मैम, मैं पीसीबी की स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और साइंस ये सोचकर लिया था क्योंकि मेरा एम था, मुझे डॉक्टर बनना था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि आपकी आईज की विजन इंप्रूव हो सकता है, तो मैंने भी वो फोर्थ सर्जरी करवा लिया। लेकिन बोलते हैं ना कि शायद गॉड को कुछ और ही एक्सेप्ट था, तो उस फोर्थ सर्जरी में मेरा विजन इंप्रूव होने की वजह टोटली नील हो गया। तो वो लाइफ का बहुत ही ज्यादा एक हम लोगों के लिए शॉकिंग टाइम था कि मतलब सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे सामने पूरा मेरा करियर था, बिकॉज 12th क्लास थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो हम लोग मैम उस टाइम पर से वेट कर रहे थे कि शायद अब विजन आएगा और उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाऊंगी। लेकिन बोलते हैं कहीं ना कहीं से रास्ते मिलते हैं। तो मुझे उसी टाइम पर स्कूल की प्रिंसिपल मैम का कॉल आया कुछ टाइम बाद कि हिमानी आप ड्रॉप मत कीजिए, आपका विजन आएगा वो बात ठीक है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं आपका विजन आ जाए, लेकिन आप अपनी ईयर को ड्रॉप मत कीजिए, और हमें आप पर भरोसा है, आपकी परफॉर्मेंस पर भरोसा है कि आप कर ले जाओगे, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए और इस बार के एग्जाम्स दीजिए। तो मैंने मैम की बात मानकर अपना वो ईयर ड्रॉप नहीं किया। 2013 में मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए पीसीबी से, और मैम मेरा अच्छा स्कोर से 12th हो गया। तो लेकिन वो टाइम जो था ना, जो विजन लॉस वाला, उसी के बीच का था ये सारा प्रिपरेशन करना, एग्जाम्स देना। बट ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाई, इतना सब कुछ, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, फैमिली के सपोर्ट की वजह से। अगर उस टाइम पर मुझे फैमिली का पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली जो चेतना दीदी आज मेरे साथ कनेक्ट है यहाँ पर, इनका सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद आज मैं यहाँ पर भी नहीं पहुंच पाती। इधर मैं थोड़ा चेतना से चाहूंगी कि चेतना कुछ एलैबोरेट करके बताए कि कैसे कैसे हिमानी ने भी अभी सपोर्ट, आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बिना फैमिली की सपोर्ट के तो इतनी मुश्किल समय तो कभी भी, कोई भी समय पार नहीं हो सकता, इतना मुश्किल समय तो कभी भी नहीं पार हो सकता। तो चेतना, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि what sort of support and how did you ensure that Himani didn't lose heart and didn't lose any didn't lose strength, didn't lose heart, stayed mentally strong, और कैसे उसने ओवरकम करा इस चैलेंज को, कुछ आप बताओगे? मैम हिमानी के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी कंडीशन आ गई थी। बहुत चुप रहना और कहीं पे भी जैसे आउटिंग पे जाना, वो सब चीज अवॉइड करने लगी थी। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया मैम, मैं मैथ्स की कोचिंग कराया करती थी उस समय पर। तो हिमानी जब 9th में थी तो मैंने उसको अपने साथ बैच में ज्वाइन करवाया कि तुम भी साथ में पढ़ाओ।
तो उसको मैं बोलती थी, वो बोलती थी कि मैं कैसे लिखूंगी, कैसे क्या करूंगी, पेन पेपर का यूज कैसे करूंगी बच्चों के सामने। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आप ओरल करना स्टार्ट करो। तो वहां से हिमानी का ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बाकी लोग जो मैथ्स करते हैं पेन पेपर का यूज करके, और मैं ओरल करके दिखाऊंगी। तो वहाँ एक दो बार जब उसने परफॉर्म किया, जो क्वेश्चंस करवाए, तो वहाँ उसके लिए क्लैपिंग हुई, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आया। और उसके बाद फिर मैंने उससे यही बोला कि आई साइट वीक हुई है, विजन गया है, लेकिन अपने को पीछे नहीं हटना है, आगे चलना है, और जो बाकी लोग नहीं कर सकते वो तुमको करके दिखाना है। तो इस तरीके से मैम हर स्टेप पे, हर जगह इसको मैंने मोटिवेट किया, हमेशा साथ रही और साथ दिया, हमेशा रहूंगी। इस तरीके से हमेशा मोटिवेट किया हिमानी को। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड चेतना, आपने, आपके पेरेंट्स ने और बाकी भाई बहन ने बिना फैमिली के सपोर्ट के तो आई एम श्योर इतना मुश्किल समय निकालना बहुत मुश्किल है। एंड हियर इज हिमानी ऑल कॉन्फिडेंट एंड ऑल। अच्छा हिमानी, मुझे एक और बात जानिए कि ये तो आपने जैसे मुझे अभी बोला कि आप पीसीबी की स्टूडेंट हैं, फिर एकदम से ये मैथ्स, और ये मैथ्स का इंटरेस्ट कैसे? मैम इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। बोलते हैं ना लाइफ में कुछ चीजों का इन्वेंशन जरूरत के अकॉर्डिंग होता है। हाँ बिल्कुल। एक टाइटल होता होगा, एक टाइटल है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी कुछ लाइफ में ऐसे कुछ छोटी छोटी स्टोरीज थी जिनकी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अब मैथ्स पे वर्क करना है। और पता है आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी मैम, उस टाइम तक मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ। और इवन मैं अपने टीचर से बोलती थी कि सर कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम मैथ्स को स्किप कर सके। मतलब मैं मैथ्स से इतना ज्यादा भागती थी, मुझे मैथ्स से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पर, ये था। लेकिन जब जैसे दीदी ने बताया, विजन लॉस होने के बाद मैं ट्यूशन में बैठती थी दीदी के साथ कोचिंग में, और बच्चों को मैथ्स कराने लगी थी। तो ओरली मैथ्स कराते कराते मेरा डेवलप हुआ इंटरेस्ट। सेकेंडली मैम उसी टाइम पर मैं, जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, मेरे माइंड में लेटे लेटे भी कैलकुलेशन चलती रहती थी, रेस्टिंग टाइम पर भी। तो कैलकुलेशन ऐसी होने लगी थी कि मैंने इतने सारे ट्रिक्स डेवलप कर लिए थे कि मैं कैलकुलेटर को डिफीट करने लगी थी। तो इन लोगों को बड़ा मैजिक टाइप का लगता था कि अरे वाह ये तो मैजिक है। देन उसके बाद टर्निंग पॉइंट जब आया, ये सब तो नॉर्मली चल रहा था, मैथ्स को लेकर टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं यूनिवर्सिटी में गई मैम, लखनऊ। 2013 में 12th होने के बाद मैंने अपना आगे का जो एजुकेशन किया वो मैम एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। मैम वो ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक इंक्लूसिव सेटअप है, जहां पर हर टाइप के डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, चाहे वो विजुअली चैलेंज हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो, और प्लस जनरल, एक साथ पढ़ते हैं मैम। कोई भी आप कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, बीटेक हो, एमबीए हो, बीएड हो, डीएड हो, एमएड हो, किसी में भी आप चले जाइए। तो मैंने भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो वहां जब कुछ चीजें जो मैंने फील की ना, वहां एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बार हम लोग एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे थे मैम, सीटेट की एक पेपर होता है, हम लोग को क्वालिफाई करना होता है अपनी जॉब के लिए, टीचिंग। तो यस टीचिंग के लिए। तो हम सारे फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे थे उसको, और बात हुआ कि ठीक है नेक्स्ट डे मैथ्स करेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला दूसरी फ्रेंड को इशारा करते हुए कि हिमानी बाकी सब्जेक्ट तो हम लोग बोल रहे हैं कर ले रही है सॉल्व, ये मैथ्स कैसे करेगी, हाउ शी कैन डू, ये मैथ्स कैसे कर सकती है, तो कैसे कल इसको बुलाएंगे हम लोग, मतलब बुला तो लेंगे लेकिन मैथ्स कैसे करेगी। तो दूसरी ने स्माइल करते हुए बोला, वो मेरी फ्रेंड थी, वो जानती थी, तो बोलती है आप जब हिमानी कल आएगी ना तो देखना वो मैथ्स कैसे करेगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वेट कर रहे थे सबके, हिमानी मैथ्स कैसे करने वाली है। जब मैं मॉर्निंग में हम लोग पहुंचे मैम, मैथ्स स्टार्ट किया, सिर्फ सामने वाली उसने क्वेश्चन रीड किया और मेरा सेकंड्स में आंसर। मैंने कहा देखिए चेक कीजिए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरप्राइज थी, बोलती नहीं आप याद करके आए। मैंने कहा और क्वेश्चन पूछो। इवन मैम उन्होंने 10 क्वेश्चन कंटिन्यू से पुटअप किए, अच्छा ये बताओ ये बताओ ये बताओ। लास्ट में बोलती है कि नहीं हिमानी अब मुझे भी आपसे सीखना है। तो मुझे वहां से एक चीज क्लियर हुआ कि हमारी सोसाइटी का एक परसेप्शन है मैम, और ये परसेप्शन नहीं, ये आज भी रियलिटी है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो विजुअली चैलेंज है वो मैथ्स नहीं कर सकते। ये एक मिथ नहीं, एक रियलिटी भी बन चुकी है। इवन अपने इंडिया में, यस अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां विजुअली चैलेंज को 8th तक एक नॉर्मल मैथ्स कराया जाता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बस। 10th में उनको बोर्ड के टाइम पर ये 9th-10th में उनको मैथ्स नहीं करवाते। तो वो कंडीशन जब मुझे पता चली कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, तब से मैंने टारगेट डिसाइड किया अपना। मैंने कहा जब मैं मेंटली कैलकुलेट करके मैं मैथ्स कर सकती हूँ तो इट मीन्स मैं औरों को करवा भी सकती हूँ। तो तब से मेरा फोकस हो गया मेंटल मैथ्स, और औरों को मैथ्स का जो फोबिया है ना
उसको दूर करके और ये प्रूव करने में लगी हूँ अब मैं कि यस विजुअली चैलेंज भी मैथ्स कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से फास्ट भी कर सकते हैं। प्रूव करने की जरूरत नहीं हिमानी, आपने ऑलरेडी करके दिखा दिया है, ऑलरेडी करके दिखा दिया है सबको कि विजुअली चैलेंज या कोई भी चैलेंज, कोई भी चैलेंज आपके माइंड को नहीं हरा सकता। आई मीन मेरा ये मानना है कि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है और अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। उसका माइंड से बड़ा कोई वेपन नहीं होता। बाकी सारे सेंसेस तो हैं पर या वेरी 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 नाइस, बहुत अच्छा लगा ये जान के। और जब आप केबीसी में आए थे खाली मैथ्स ही नहीं, मैथ्स तो एक अपने आप में एक चीज है कि मैथ्स चलो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन जब आप केबीसी में आए तो मैंने देखा कि इतने सारे वैरिड दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी फील्ड, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है, द क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरिड फील्ड। तो उसके लिए एंड यू वर वेरी क्विक इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। आई मीन आप बहुत जल्दी, और आई मीन बहुत से कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं केबीसी में, पर इतनी फास्टेस्ट फिंगर पल्स हो या इवन उसके लिए बहुत सारे विषय की जानकारी चाहिए, तो वो आपने वो कैसे डेवलप करी? आई एम श्योर वो एक दिन में तो डेवलप नहीं हुई, कुछ उसके बारे में बताएं। यस मैम, ये बहुत मतलब बोलते नहीं है लॉन्ग टाइम जर्नी का रिजल्ट था जो केबीसी वाला था, बिकॉज मुझे स्टडी करने का तो शौक बहुत पहले से ही था, स्पेशली जीके वाला। इवन मैंने आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला भी हुआ है कि मैं बहुत छोटी थी ना तभी से मैं केबीसी का खुद से एक्ट करती थी अमिताभ सर बन के, और हम सारे फ्रेंड्स से मैं क्वेश्चन पुट अप करा करती थी जीके के। तो जीके के लिए इंटरेस्ट तो जब छोटी सी था, चाइल्डहुड वाली एज से, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए ना आफ्टर 12th तो कंपटीशन की तरफ भी बहुत फोकस हो गया, क्योंकि दीदी कंपटीशन की कोचिंग देती थी स्टूडेंट्स को, तो तब से भी मेरा जीके कंटिन्यू चल रहा था। और उसके बाद फिर जब अपना टीचिंग का प्रिपरेशन किया तो मतलब कंटिन्यूअसली मेरा जीके टच में रहा मैम। और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो मैं हमेशा मॉर्निंग में उठकर, अगर मैं 5 o'clock उठ रही हूँ तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता था मोबाइल खोलो, यूट्यूब स्टार्ट करो और उससे कुछ ना कुछ आज का करंट अफेयर्स पढ़ो, पहले अपने आप को अपडेट करो। तो ये एक मेरा पैशन बोल सकते हैं आप कि मेरा पैशन है कि मुझको अपने आप को अपडेट करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो लॉन्ग टाइम की जर्नी, कंपटीशन की प्रिपरेशन, जीके का शौक, सबका मिलाकर जो कंक्लूजन है वो आज आपके सामने है। और हिमानी, अपडेट तो बहुत सारे लोग अपने आप को करते हैं, पीपल लाइक टू अपडेट देमसेल्व्स, एंड आजकल सोशल मीडिया में एंड स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक एवरीबॉडी इज ऑन टू यूट्यूब, बट रिटेन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट हमारे बहुत जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ पे सब हमारी विद्या के टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा लेसन होगा कि ये जानना कि आप जो भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसको रिटेन कैसे कर पाते हैं। मैम रिटेन करने के लिए देखिए 2 स्टेप हो सकते हैं। अगर मैं जनरल वे में बात करूं अपने आप को हटाकर, तो रिटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने कुछ लर्न किया है तो आप नेक्स्ट डे उसका रिवीजन जरूर कीजिए। सेम मैं भी ऐसी करती थी। अगर आज मैंने कोई नए कंसेप्ट सीखे हैं तो मैं उनको ऑडियो नोट्स में बनाती थी, पता है, जैसे 1 आवर का कोई लेक्चर सुना, अब इतना बड़ा लेक्चर मैं रिवाइज कैसे करूंगी नेक्स्ट डे, टाइम तो बहुत वेस्ट होगा। तो मैं उसको उस 1 आवर के लेक्चर को मैं 10 या 5 मिनट की ऑडियो, शॉर्ट ऑडियो नोट में रेडी कर लेती थी, सारे मेन पॉइंट्स, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के उसको रिवाइज करना और उसके बाद एक बार इवनिंग में उसका हल्का से मगअप कर लेना। इवन मैम मैं रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कि मोबाइल ही लेकर बैठना या ऑडियो प्ले करनी है। सपोज दैट मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो ट्रैवल करते करते एकदम माइंड को फोकस किया, अच्छा ठीक है उसमें ऐसे था ऐसे था ऐसे था करके रिवीजन में कर लेती थी। मतलब मुझे रिवीजन के लिए कोई पर्टिकुलर बुक और वैसा कुछ नहीं खोलना पड़ता था अपना ऑडियो नोट्स। एनी टाइम जब मुझे मौका मिलता था तो मैं रिवाइज जरूर करती थी। तो मुझे लगता है किसी भी चीज को रिटेन करने के लिए रिवीजन मस्ट है, और अगर आप मॉर्निंग में उठ के करते हैं जो मैंने फॉलो किया तो वो तो और भी फिर लॉन्ग टाइम तक रिटेन रह सकता है आपकी मेमोरी में। बहुत आई थिंक ये टिप सबको सीखनी चाहिए, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, और स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑडियंस है वो हमारे टीचर्स हैं जो कि सब एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे से लेके काफी बड़े बच्चों तक। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली नॉलेज गेन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उसको रिटेन करना और अप्लाई करना राइट समय पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो हिमानी, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने सीधे सीटेट का एग्जाम दिया?
यस नो मैम मैंने आफ्टर 12th सीटेट का एग्जाम दिया। एक्चुअली मैंने आफ्टर 12th मैंने डीएड किया, डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो भी स्पेशलाइजेशन था मेरा। ओके तो जब डीएड मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था मैम, उससे पहले मैंने 2 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। वेरी नाइस वेरी नाइस। यस 2016 में मैंने डीएड कंप्लीट किया एंड व्हेन आई वाज ओनली 20 ईयर ओल्ड, और 2017 में मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब लगा। देन उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है मैम। ओह, ये तो आई थिंक ये दिस इज न्यूज़ टू एवरीवन। ये नहीं आपने कभी रिवील करा। ओके, वेरी वेरी नाइस। यस बिफोर ग्रेजुएशन मेरा जॉब लग गया था मैम केवीएस में। ओके, तो अभी आप कहाँ, अभी आप केवीएस में ही पढ़ा रही हैं? हाँ जी मैम, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इस टाइम पर मेरी पोस्टिंग है। बट मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था मैम केवी बलरामपुर, नेपाल बॉर्डर। ओके, तो बच्चों के साथ आई एम श्योर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कुछ उसके बारे में बताएं। स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे, क्योंकि यहाँ सब टीचर्स हैं और सबके लिए आपके एक्सपीरियंसेस, हाउ टू फॉर्म बॉन्ड विद चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने में क्या सहजता, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है जाना। मुझे लगता है अगर हम टीचर हैं तो हमारे लिए मस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे स्टूडेंट से बॉन्डिंग। तो पता है मैम मेरे संग क्या एक्सपीरियंस रहता है, बच्चे क्या बोलते हैं, बोलते हिमानी मैम आपसे बात करने के बाद ये नहीं लगता आप टीचर हो। मैंने क्यों? बोलते ऐसा लगता है आप हमारे फ्रेंड हो। मैंने कहा ऐसे ही लगना चाहिए बेटा, मतलब उनके संग आप इतना फ्रेंडली हो जाइए कि बच्चा अगर कोई बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा है तो आपको बता सके। मैम मेरा यही नेचर है, मैं बच्चों के संग इतना फ्रेंडली हो जाती हूँ ना। कभी कभार बच्चे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं घर पर नहीं शेयर करते, लेकिन बहुत ओपनली वो मुझे बता देते हैं कि मैम ऐसा ऐसा है, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए हमने ये काम नहीं कर पाया। तो मैं भी बड़ा फ्रेंकली उनको फिर डील करती हूँ और उस हिसाब से उनको उनके सॉल्यूशन भी बताती हूँ। तो मुझे लगता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करना, तभी जाके बच्चा लर्निंग कर पाएगा। सेकेंडली, जब भी मैं क्लास में एंट्री करती हूँ ना, कभी ये नहीं बोलती स्टूडेंट्स कैसे हैं आप, हमेशा जाकर एंट्री करते ही यस माय चैंपियन, यस माय कमांडो। जैसे हमारा एयरफोर्स वाला स्कूल है तो बच्चों को मैं बोलती हूँ यस माय जूनियर कमांडो, कैसे आप सभी? तो स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है यस सुपर कमांडो, वी ऑल आर फाइन। तो इस टाइप से क्लास में एंटर करते ही बहुत ही एक अलग टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और बच्चे भी बहुत मोटिवेट होते हैं। अगर आप उनको चैंपियन बोलेंगे ना, आप उनका कॉन्फिडेंस देखिएगा, फेस की स्माइल देखिएगा, और आपने वही उनको बोला यस जूनियर कमांडो, कैसे रहते हैं जूनियर कमांडो डिसिप्लिन में, तो बच्चे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में हो जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो क्लास में आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मैम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं फॉलो करती हूँ, जैसे ही बच्चे से कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करती हूँ ना, तो हमेशा उसको फर्स्ट टाइम ये बोलती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा स्माइल। तो वो पहले खुश हो जाता है, फिर उससे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कुछ। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो मेरी क्लास में मैं अप्लाई करती हूँ ये वो थी। तो मुझे लगता है अगर सारे टीचर्स इन ट्रिक्स को क्लास में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी लर्निंग होती है, जॉयफुल लर्निंग होगी बहुत ही ज्यादा। मानी हम बिल्कुल आपको, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। और किसी भी समय जब भी थोड़ा पेंडेमिक बेटर हो जाएगा, हमारे पास विद्या में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि उनके पास भी बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंज बैकग्राउंड से आते हैं, काफी चैलेंजेस हैं उनके पास इकोनॉमिक। और मैं चाहूंगी कि जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह का एनवायरनमेंट आप अपने बच्चों के लिए लेकर आती हैं, आप कभी भी हमारे पास विद्या में आए और हमारे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करें। एक तो आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है और उसके साथ साथ में जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का बॉन्डिंग आप स्टूडेंट्स के साथ लाती हैं, आई एम वेरी श्योर हमारे बच्चे और हमारी टीचर। मैं एक एक्सपीरियंस और छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल। जैसे इस टाइम पर विंटर है तो बहुत ज्यादा असेंबली वगैरह बाहर नहीं होता है स्कूलों में भी, हमारे स्कूल में भी नहीं हो रहा था अभी, असेंबली ग्राउंड में नहीं जा रहे थे स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अब बच्चे ठंडी में आते हैं इतना विंटर में, तो बड़ा एकदम शिविर करते हैं, मैम बहुत बहुत चिल्ड है, मैम हाथ बहुत एकदम चिल्ड हो रखे हैं। तो उस टाइम पर मैं उन लोगों को सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑर्डर गेम खिलवाती हूँ, तो उससे बड़ा मजा आता है। बच्चों से बोलती हूँ मैं जो कमांड करूंगी आपको वो फॉलो करना है। बोलते हैं यस मैम। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप डाउन, देन उसके बाद जंप विद क्लैप, लाफ, स्माइल, ऐसे करते करते जब वो 5 मिनट तक करते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं मैम मजा आ गया, अब हम पढ़ सकते हैं, रेडी हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सी एक्टिविटीज है जो भी रेगुलर में चल रही है। आई एम श्योर हिमानी, आई एम श्योर बहुत आपके स्टूडेंट आपके साथ बहुत एंजॉय करते होंगे, एंड डेफिनेटली हम चाहेंगे कि कभी ना कभी जैसे कुछ भी नॉर्मल होगा तो डेफिनेटली आप आगरा से हम आपको
गुरुग्राम या विद्या के और सेंटर्स हैं, सब जगह हम आपको इनवाइट करें और आप डेफिनेटली हमारे बच्चे और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। यस मैम, डेफिनेटली यस। हिमानी, इसके अलावा एक ये तो हो गई पढ़ाई, इसके अलावा और आपके क्या इंटरेस्ट है? मैम मेरा इंटरेस्ट एरिया तो जैसे कि मुझे ना फ्री टाइम है, अगर फ्री टाइम होता है तो उस टाइम पर मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि कुछ फिजिकल हो, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अभी तो मैंने जो रिसेंटली स्टार्ट किया है ना, अभी मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट कर दिया है, तो मैं डेली फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा बास्केटबॉल को टैप करती हूँ मैम, और उसमें अपना टारगेट सेट करती हूँ कि मुझको इतना टैप करना है, और कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप आईज क्लोज करके कैसे बास्केटबॉल पे कोऑर्डिनेशन सेट कर सकते हैं अपने हैंड का। तो इस टाइम पर ये चल रहा है। बाकी मुझे चेस बहुत पसंद है, चेस मैं खेलती हूँ, और सेकेंडली मुझे मैं मोटिवेशनल कुछ लाइंस बोलना, शायरी करना, ये सब बहुत पसंद है, और थोड़ा थोड़ा पियानो प्ले करना जो दीदी से आया हुआ है मुझे वो भी थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो ये कुछ इंटरेस्ट एरिया है जिस पर जैसे जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। तो हो जाए कुछ हिमानी, कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लाइन जो आपको पसंद है, शेयर करोगे आप हमारे ऑडियंस के साथ कुछ? यस मैम, जो मैंने केबीसी में बोला था वो वाला बताऊं या कौन से वाला बताऊं, बताइए। जो आपको अच्छा लगता है हिमानी, जो आपको लगता है सबसे ज्यादा आपको डिस्क्राइब करता है, आपके करीब है। तो वो तो मैम फिर मेरी फेवरेट है, और जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, मुझे लगता है बाकी लोगों को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो लाइन ये है, ये शिव खेड़ा जी की बुक की है मैम, जीत आपकी, उनकी बुक से है ये लाइन, कि जीतने वाला कभी कोई अलग काम नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, जीतने वाला कभी भी कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग तरीके से करता है। इट मीन्स वर्क वही है जो आप कर रहे हैं, वही मुझे काम करना है, लेकिन डिफरेंस इतना होगा, मेथड हमारा अलग अलग होगा। एग्जाम्पल, स्टडी आप भी कर रहे हैं, स्टडी मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे केस में क्या है, मेरा मेथड दूसरा होगा। मैं सुनकर करूंगी स्टडी, आप लिख कर रहे हैं। तो बस ये है, ये मैं हमेशा मैम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि मुझे भी वही सारे काम करने जो एक जनरल पर्सन करता है, बट मेरे मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जनरल पर्सन, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जीतने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते, आई मीन वही काम करते हैं बट उसे दूसरे तरीके से करते हैं। करेक्ट, यस, वेरी या इंस्पिरेशनल। मेथड दूसरा होता है। या और हिमानी, आपने केबीसी में एक मैथ्स की ट्रिक शेयर करी थी, तो यहाँ पे हाँ जी बहुत मैम। सारे लोग हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो अगर ओके। आप कुछ ट्रिक्स, कुछ मेंटल मैथ्स, स्पेशली कई बहुत सारे हमारे ऑडियंस में टीचर्स हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और जैसा आपने कहा कि मेंटल मैथ्स, एंड मेरा भी ये मानना है कि अगर छोटे बच्चों को अगर हम स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन मेंटली कराना शुरू कर दें तो वो शार्प हो जाते हैं। तो अगर कुछ मेंटल मैथ्स की ट्रिक्स या कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप शेयर करना चाहो तो। यस मैम, डेफिनेटली कुछ ट्रिक्स, एक ट्रिक तो, दो ट्रिक तो मैंने अमित साहब सर को ही सिखा दी थी बाकी मैं यहाँ शेयर करती हूँ, है ना। जैसे सपोज इट, मैंने आपके सामने 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रखे हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स लगातार जो नंबर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप 11, 12, जैसे कि एडिशन का लेते हैं हम, है ना, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20। इट मीन्स अगर आपको 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करने के लिए दे दिया जाए तो मैम आपको कितना टाइम लगेगा? आप सोचिए, आपको मैं ये क्वेश्चन ओरली करने के लिए बोल रही हूँ, तो आप कितने टाइम में कर पाएंगे? अगर फास्ट भी होंगे तो भी 11 प्लस 12 प्लस 13 ऐसे करके करेंगे नॉर्मली। यस, तभी आपको आई थिंक मुझे लगता है 1 मिनट समथिंग लगेगा। बिल्कुल लग जाएगा, अगर फास्ट है तो भी लग जाएगा, तब भी लग जाएगा। बट मैम इसकी ट्रिक ऐसी है, आप विद इन 1 सेकंड में इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। पता है कैसे? अगर ये ट्रिक इंप्लीमेंट होगी सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आपके पास 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और आपको ऐड करना है, तो आप उस कंडीशन में इस ट्रिक को इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये ट्रिक क्या है ये देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, 155 रहेगा। पता है कैसे किया ये मैंने? सिंपली आप अज्यूम कीजिए आपके पास 11 to 20 नंबर्स है, ठीक, हमें इनको ऐड करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। जब ऐड करेंगे ना, इसमें एक चीज फिक्स है कि आपका वंस प्लेस पर 5 आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप 5 को अपने माइंड में बिल्कुल रखिएगा सेव। ओके, 5 आपने रख लिया। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा था हमारा? 11। हाँ, जो भी फर्स्ट नंबर, हाँ, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसमें अपन को सिर्फ 4 ऐड करने। इट मींस
11 था, 11 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 15। 15। यस, 15। आपका आंसर आ चुका है मैम, 155 इसका आंसर है। 15 अभी आया, 5 पहले से था। सॉल्व हो चुका है। वेरी नाइस। इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सपोज दैट आपको मैंने बोला है ऐड कीजिए 85 से 94 तक के नंबर को। अब आप सोचिए, अब आप ऐड कर रहे हैं 85 से 94। ओरली करेंगे तो वैसे नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप इसको जनरल मेथड से कैसे करेंगे, जो मेरा ट्रिक वाला मेथड है। 85 से 94 तक ऐड करना है तो आप सिंपली वंस प्लेस पर 5 रखिए, ठीक। 85 में मैंने कहा था 4 ऐड करना है, तो 85 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा? 89। तो इट मींस हमारा आंसर हो जाएगा 895। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपने विद इन 1 सेकंड में कैलकुलेट कर दिया। तो एक तो ये हमारा एडिशन ट्रिक है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हो मैम, केवल 2 डिजिट पे नहीं, इससे आगे का 3 डिजिट वाला है, 4 डिजिट वाला है, किसी भी कंडीशन में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेरी नाइस मानी। यस, और ये मैंने अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड किया हुआ ये वाला ट्रिक। और एक ट्रिक और है मैम, आप बोले तो वो भी बताऊं, मल्टीप्लिकेशन वाला है। प्लीज बताओ। यस, एक ट्रिक ये है, जो भी हमारे टीचर्स हैं आप लोग खुद करके देखिए पहले आप कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें ट्रिक है, किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई विद इन सेकंड में आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको बोलती हूँ 125 मल्टीप्लाई बाय 248, कितना टाइम लगेगा मैम? क्या बताइए आप, अगर इसको करके देखेंगे हम। हाँ लगेगा, 2 मिनट्स तो लगेगा हम लोगों को। 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसका आंसर आ चुका है 31000। पता है कैसे? अगर हमको किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 125 से करना है तो हमको सिंपली उस नंबर को 8 से डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम 125 मल्टीप्लाई 24 रख लेते हैं, 248 को भी हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 24। ओके, तो हमको क्या करना है, पहले जो 24 है इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 से आप 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3, बिकॉज 8 3s are 24। ओके, 3 आ गया। उसके बाद 125 में कितने डिजिट्स हैं? 3, 1 2 और 5। तो जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उसमें आप 30 ऐड कर दीजिए। तो 3 हमारे पास था ही, अब हमने लास्ट में 30 और ऐड कर दिया। इट मींस आंसर हो गया 3000। सपोज दैट एक और एग्जांपल 125 मल्टीप्लाई 72, तो आप कैसे करेंगे बताइए? 8 को पहले 72 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 72 को 8 से फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 9, और 30 हमको ऐड कर देना है बिकॉज 125 में 3 डिजिट है, तो 9000 हो गया इसका आंसर। यस, तो इसी टाइप की कुछ ट्रिक्स मेरे YouTube चैनल पर है मैम, मेंटल मैथ्स के नेम से बहुत सारे ट्रिक्स मैंने अपलोड किए हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं आराम से। Sure, very very inspiring। और मैंने कहीं पढ़ा था आपके इंटरव्यू में हिमानी, कि आपने कहा कि आप इनफैक्ट केबीसी में भी आपने कहा था कि आप एक ऐसी एकेडमी बनाना चाहती हैं फॉर बच्चों, सब लोगों को कोचिंग मिले, जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को कोचिंग मिले, स्पेशल नीड्स बच्चों को कोचिंग मिले, जिसमें जो कि हायर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज। यस, बिल्कुल मैम। एक्चुअली पता है मैम इसका रीजन क्या था, इसका ये मैंने क्यों सोचा, बिकॉज अभी भी मैम स्टूडेंट्स को मेंटल मैथ्स करवा रही हूँ, तो उनसे कम्युनिकेशन करते में मुझे ये पता चला जनरली जो कोचिंग वाले होते हैं वो विजुअली चैलेंज को एडमिशन देने में थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स के संग हम इनको मैथ्स कैसे करवाएंगे। स्पेशली मैथ्स को लेकर उन लोगों को बड़ा फोबिया रहता है कि बाकी स्टूडेंट्स को तो हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे या ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करवाएंगे तो स्टूडेंट्स जनरली कर लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे संग विजुअली चैलेंज है या हियरिंग इंपेयर्ड है तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए वो लोग एडमिशन तक नहीं देते। तो ये अपने आप में मुझे लगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमको एक कोचिंग लेना पड़ता है, और कोचिंग में जब हमको एडमिशन नहीं मिल रहा तो अपने आप में एक बहुत पैनिक हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कोचिंग बनाऊंगी जिसमें हर टाइप के डिफरेंटली एबल्ड और प्लस जनरल स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर रखा जाएगा। जैसे अगर कोई हियरिंग इंपेयर्ड है, सपोज दैट सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखेंगे। कोई विजुअली चैलेंज है तो उसके लिए ऑडियो कंटेंट रखेंगे। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है तो रैंप वाला अरेंजमेंट होना चाहिए।
तो कुछ इस टाइप का मॉडल मेरे माइंड में है मैम, देखते हैं कब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ उसे, लेकिन हाँ इस टाइप का मॉडल है, उस पर अभी एक स्टेप वर्क करना स्टार्ट हो भी चुका है। वेरी नाइस। आई एम श्योर आप जैसे आप अपने इरादों की पक्की और मजबूत है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट कर ले जाएंगे, एंड दैट वुड बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग, बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी मौका नहीं मिला है उनके लिए कुछ तो स्पेशल ऐसा होना चाहिए कि दैट दे शुड आल्सो गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। यस मैम, बस अपॉर्चुनिटी की बात है मैम, टैलेंट की कहीं कमी नहीं होती है। इसी बिल्कुल। बात पर मैम एक लाइन है वो बोलना चाहूंगी, बिल्कुल। हमारे सारे जो लोग हैं वो सुनिएगा ध्यान से। प्रतिभा गजब की है, प्रतिभा गजब की है, हौसले बुलंद हैं। प्रतिभा गजब, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, प्रतिभा गजब की है, साहस अदम्य है। प्रतिभा गजब की है, साहस अदम्य है, माना कि हम दिव्यांग हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं। वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा हिमानी। और दिव्यांग होना या कोई और भी स्पेशल नीड्स होना, कहीं पे भी ऐसा ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि वो किसी तरह से कोई चैलेंज है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, अगर जैसा आपने कहा कि अगर हौसला बुलंद है तो सब कुछ कर सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल से इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो। हाँ बिल्कुल लो। या जो भी हमारे ऑडियंस है वो भी इसको थोड़ा सा सोचिएगा, जो मैं बोल रही हूँ मैम के संग इंटरेक्ट वे में रहेगा, और आप लोग भी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचकर देखिएगा। सपोज दैट मैम और बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आपके सामने दो पर्सन है, ओके, एक की आइस पर हमने ब्लाइंड फोल्ड बांधा हुआ है और दूसरा जनरली खड़ा है। आपने बोला चलिए, दोनों चल रहे हैं। आपने बोला ठीक है यहां से वहां तक जाना है, दोनों वॉक करके जा रहे हैं। तो मैम अब आपसे क्वेश्चन ये है, आपकी नॉलेज में ज्यादा टैलेंटेड कौन हुआ, ब्लाइंड फोल्ड वाला या जो जनरली चल आइस ओपन करके चल रहा है? अगर देखो, जिसकी लाइफ में हमेशा चैलेंज है और अगर वो कोई ओवरकम कर रहा है तो डेफिनेटली पोजीशन शुड गो टू दैट पर्सन जो जिसके पास सब कुछ है। मैं तो मेरे लिए तो चलना क्या है, एक छोटा बच्चा होता है उसने चलना सीख लिया तो वो चल रहा है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि जिससे कि मेरे पास कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो मैं ठीक से नहीं कर पा रही और मैं फिर भी उस काम को कर ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास मैं ज्यादा यस, मतलब ब्लाइंड फोल्ड वाला ज्यादा टैलेंटेड हुआ, ऑब्वियसली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। यस, लेकिन उसके बाद भी हमारी सोसाइटी तो एक वर्ड यूज करती है डिसेबल्ड। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग डिसेबल्ड हुए या सुपर एबल्ड हुए। एक पर्सन नॉर्मली चल रहा है, दूसरा पर्सन भी वही काम कर रहा है, लेकिन चैलेंज होने के बाद भी, तो वो डिसेबल्ड वर्ड कहां से उसके लिए आ सकता है? वो तो सुपर एबल्ड हुआ, चैलेंज होने के बाद भी वो वही काम कर रहा है जो जनरल पर्सन कर रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी हमारे सुन रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज अगर आपके पास भी कोई डिसेबल्ड वर्ड यूज करे ना तो इसको समझाइए, और आप भी, क्योंकि मैम पता है हमारी लाइफ में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अगर सपोज इट आज आपके सामने कोई पर्सन आया है, वो किसी चैलेंज के साथ सफर कर रहा है, आपको कोई बोल दिया डिसेबल्ड है, आप पहले उसकी माइंड में नेगेटिव चीज सोच लोगे। लेकिन वहीं आपको बताया जाए कि देखिए आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय आया है ये सुपर एबल्ड है, तो फिर पता है आप उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढोगे और उसको मोटिवेट करोगे कि अरे वाह ये तो सुपर एबल्ड पर्सन। तो वर्ड्स का लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है। तो सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है, सुपर एबल्ड ये वर्ड को यूज कीजिए, नॉट डिसेबल्ड। थैंक यू हिमानी, थैंक यू फॉर मेकिंग अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। और विद्या में हम जैसा आपने इंक्लूसिवनेस की बात करी, विद्या में हम बिल्कुल इंक्लूसिव हैं और हम कभी भी, हमारे लिए सब इक्वल हैं, क्योंकि हमारे तो जो भी आ रहा है वो, जैसा आपने कहा कि किसी ना किसी एडवर्सिटी से चलता हुआ आ रहा है, और जैसे आपने कहा टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, केवल एक मौका देने की जरूरत है। एग्जैक्टली मैम। तो विद्या इज ऑल अबाउट दैट। विद्या इसी बात को लेके आगे बढ़ता है कि बस जिसको मौका नहीं मिला आज तक 75 साल में अगर पढ़ाई का, तो बस उन सबके लिए, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बच्चे हैं, उनको सबको बस पढ़ाई का एक मौका दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नो मैम, एक्सीलेंट। और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो आई एग्री विद यू कि कभी भी किसी के लिए डिसेबल्ड या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उनका हौसला कम नहीं करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आई एग्री।
और हिमानी और इसके अलावा और क्या, ये तो या आपका एक ये है कि एक एम्बिशन आपने शेयर करा कि आप ये करना चाहती हैं, और क्या करना चाहती हैं? शोइंग, आई एम श्योर जितने टैलेंटेड और जितने जितने एम्बिशियस आप हो और जितने फोकस्ड आप हो। मैम एक्चुअली मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। अभी केबीसी के बाद आने के बाद मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया और एक प्रोजेक्ट आशा, ओके। जिसमें मेरा टारगेट ही है फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को अवेयर करना और स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करके उनकी चैलेंज को ओवरकम करना और उनकी जो नीड्स है उस पर वर्क करना। तो मैम फर्स्ट टाइम हमारे केंद्रीय विद्यालय में इस टाइप का प्रोजेक्ट कोई आया है जिसमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली उनको फोकस करके। तो ये इनिशिएट हो चुका है और अपने आगरा सिटी में भी मैम मैंने इसी के अकॉर्डिंग जो इसके अंडर में वर्क चल रहा है वो ये है कि हम लोग उनके राइट्स के लिए भी बात कर रहे हैं। और तीसरा आशा के अंदर ही जो मेंटल मैथ्स वाला प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है मैम, जिसमें मेरे पास जम्मू से लेकर चेन्नई तक के डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स कनेक्ट है मेंटल मैथ्स पढ़ने के लिए। तो उनको लिए भी 2 बैच डिवाइड किया हुआ है, बेसिक और एडवांस वाला। ओके। तो ये जब अभी चल रहा है, स्टार्ट किया है, लेकिन अभी इसी चीज के लिए मुझे बहुत आगे सोचा हुआ है मैंने कि क्योंकि मैम मेन बात है दिव्यांग लोगों के लिए राइट्स और अवेयरनेस, अगर ये 2 चीज है तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ है। अवेयरनेस वो भी पता है क्या, अगर सोसाइटी हमारी अवेयर है ना तो कोई चैलेंज है ही नहीं लाइफ में। आपके 60% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो गए अगर लोग आपको अवेयर मिल रहे हैं। बिकॉज दीदी के और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम, हम लोगों को हमेशा फाइट करना पड़ा है अपने राइट के लिए, हमेशा फाइट। यूनिवर्सिटी में जब जा रहे, कॉलेज में गए तो वहां मना कर दिया गया, बोला गया कि आप स्कूल क्यों आते हो, कॉलेज क्यों आ रहे हो, आप घर बैठ के पढ़। सोचिए, मतलब कॉलेज वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एडमिशन हो गया, लेकिन वहीं हमको बोला जाता है असेंबली में कि आप कॉलेज क्यों आ रहे हैं, आप घर बैठ के स्टडी कीजिए। बट मेरा ये था कि ठीक है आप मना कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली अब तो कॉलेज जरूर आऊंगी। मेरा भी थोड़ा है इस टाइप का। बिल्कुल सही है। यस, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल यस। तो अभी तक हमने जितनी भी फाइट की ना अपने राइट के लिए, उसका मेन जो मैंने देखा क्या था कि लोग अवेयर नहीं होते। अवेयर नहीं होते तो वो हमको हमारी चीजें देते नहीं, हमारे राइट नहीं देते, तो उसके लिए हमको फाइट करना पड़ता है। तो अब मेन टारगेट है मेरा लोगों को अवेयर करना, जिससे जो पेन मैंने फील किया है, मेरी फैमिली ने फील किया है, वो हम बाकी लोगों को नहीं फील करवाना चाहते हैं। अभी भी चैट बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन देखा हिमानी, किसी ने आपकी आशा के इनिशिएटिव के लिए मुझसे पूछा कि क्या क्या आपका ये आशा इनिशिएटिव ऑनलाइन सबके लिए ओपन है? मैम ऑनलाइन अभी जो इसमें स्टूडेंट्स जो मतलब जो मेंटल मैथ्स में चल रहा है, मेंटल मैथ्स बेसिकली तो अभी विजुअली चैलेंज के लिए चल रहा है इसमें, और लेकिन हाँ एज अ वॉलंटियर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कर सकते हैं ज्वाइन। आई होप चैट बॉक्स में जिसने क्वेश्चन पूछा था उनका क्वेश्चन आंसर हो गया हो। लेकिन हाँ ये है जो मेंटल मैथ्स वाला है उसका कुछ कंटेंट अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रही हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं उसके लिए। ओके अच्छा हिमानी, एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि what is the secret of her beaming smile despite having such a tough time in life? मैम बस स्माइल का एक ही रीजन है, हमेशा अगर मैं थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होती हूँ ना तो मेरे माइंड में एक ही टारगेट रहता है कि लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करना है। इट मीन्स मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। तो जब मैं मम्मी पापा की तरफ देखती हूँ, अपनी फैमिली की तरफ देखती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन और एक स्माइल फील होता है कि नहीं ठीक है, अपना है जो है प्रॉब्लम है, लेकिन इन लोगों के लिए जरूर करेंगे। क्योंकि मम्मी पापा फैमिली में मम्मी पापा ऐसे होते हैं हमारे लिए जो अपना कभी कुछ नहीं देखते, सिर्फ सोचते कि हम लोग खुश रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हमारी भी ड्यूटी है कि उनके सामने हम स्माइल करते हुए उनको खुश रखें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस थॉट प्रोसेस। और एक जने ने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू कैन गिव अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? लाइफ में मैम मुझे लगता है सक्सेस होने के लिए सबसे बेस्ट जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया वो एक चीज है, आपको अपने टारगेट पर, जो आपका एम है, जो लक्ष्य है, उस पर फोकस्ड होना चाहिए। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में अल्टीमेटली आप चाहते क्या है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में चाहते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं? पहले आप अपने आप से पूछिए आज कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर आपको जिस दिन इसका रेस्पॉन्स, इसका जवाब मिल जाएगा ना कि आपको करना क्या है, उस दिन अपना एक चार्ट बनाइए, एम लिख लीजिए उस पर,
और डेली उस एम को देखिए कि आज आपने उस एम को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स आप आगे चले। तो इट मीन्स आपको फोकस्ड होना है अपने एम पर। जिस दिन आप ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। दूसरा, आपको पेशेंस जरूर रखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मैम, हम लेबर तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट पेशेंस अपना लूज कर देते हैं। तो पेशेंस लूज नहीं करना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, अगर मैंने ये सोचा है, मुझे ये करना है, तो वन डे डेफिनेटली ये हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तो केबीसी के लिए मेरा ऐसा था मैम, बहुत टाइम से मैं सोचती थी कि मुझे एक बार टीवी में जरूर जाना है, अमिताभ सर के संग मिलना है। तो बीच में बहुत लोगों ने बोला, इवन पापा भी बोलते थे कि बेटा आपसे नहीं होगा टीवी में जाना, तो आई डोंट नो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे जा सकते हैं। मैं भी सोचती थी कि हाँ यार, बात तो सही है, टेलीविजन में जाना और कैसे क्या प्रोसेस होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कुछ भी हो मुझे बस जाना है। तो बस मेरा यही कॉन्फिडेंस और एक अपने फोकस को लेकर, एम को लेकर मैं आगे बढ़ी, तो हो पाया वो। Nice. और किसी ने मुझसे कहा है कि आपसे पूछूं, हु इज योर आइडल फॉर इनर पीस? आपका, सबके आइडल होते हैं कोई ना कोई, आप बहुत लोगों की आइडल हैं आप, तो आपका कोई आइडल? मैम मेरे आइडल मेरे मम्मी पापा और मेरे दीदी। वेरी नाइस। बिकॉज इन लोगों का स्ट्रगल मैंने देखा है, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा हम लोगों के लिए किया, तो मैं अपने आइडल अपने मम्मी पापा और दीदी को मानती हूँ। हिमानी, ये और कुछ और बताओ कि कैसे आप लोग, आपने और कैसे ये टीवी में जाने का आपका सपना साकार हुआ? कैसे हुआ? आप कहते थे मैं बचपन से जाना चाहती हूँ, कैसे साकार हुआ ये सपना? मैम जब मैं टीवी में देखती थी ना, एक्चुअली मुझे ना टीवी में जाने का छोटे से ही बड़ा शौक लगता था कि एक बार मुझको टीवी में आना है। फिर लगा कि रियलिटी शो अच्छे हैं टीवी में जाने के लिए, तो रियलिटी शो में जाया जाए। फिर एक बार जब केबीसी को देखा ना, तब उस दिन क्लिक हो गया कि यस, अब तो यही शो है जिसमें मुझको जा सकती हूँ मैं और टीवी में जाके अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। तो केबीसी के जैसे मैम रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ करते थे ना, तो मैं भी अप्लाई करती थी। और शायद आपको पता होगा, पहले मैसेज वाला सिस्टम चलता था, तो मैसेज हम लोग करते थे सेंड, बट कभी भी मैसेज हमारा सक्सेसफुली आगे फॉरवर्ड होता ही नहीं था, हमेशा उसमें आ जाता था कि फेल, मैसेज फेल। तो उस टाइम पर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था, और फिर लगता है टीवी की लाइफ अलग ही होती है, वो अलग ही कुछ सिस्टम चलता है, हम लोगों के मैसेज ही नहीं वहां पहुंचे तो हम कैसे पहुंचेंगे। लेकिन बोला ना कि एक फोकस था कि जाना है, तो हमेशा फेल हुआ, लेकिन हम भी जिद्दी थे मैम, कोई बात नहीं, आज फेल हो रहा है, नेक्स्ट टाइम केबीसी शुरू हो रहा है, फिर अप्लाई करा, तो इस टाइम से चलता रहा, हमेशा मैसेज फेल होते रहे। लेकिन जब अभी लगभग मुझे लग रहा है 2 इयर्स से, लगभग 2 इयर्स से एक एप्लीकेशन आ गया सोनी लिव ऐप, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें मैसेज कन्वे होता है, फेल नहीं होता। जब वो आया तो एक लगा होप, अरे चलो एटलीस्ट मैसेज तो पहुंच रहे, हमारी रिक्वेस्ट तो पहुंच रही है आगे। तो बस मैम सोनी लिव ऐप में रजिस्ट्रेशन किया, और इस बार रजिस्ट्रेशन भी हो गया, धीरे धीरे करके कॉल आने लगा, वहां से पूरा प्रोसेस हो गया। और इवन आपको पता है, जब मुझे केबीसी के लिए कॉल आया, तो ज्यादातर बोलते हैं ना फ्रॉड कॉल आते हैं, तो मेरे पास भी जब फर्स्ट टाइम कॉल आया तो उस पर कुछ कंपनी जैसा नंबर शो हो रहा था, तो मैंने वो कट कर दिया। कुछ देर बाद फिर कॉल आया, मैं अपनी स्टडी कर रही थी, मैंने कहा अरे कंपनी ऐसे क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही है, मैंने फिर कट कर दिया, मुझे ये नहीं पता था केबीसी का कॉल आ रहा है। फिर मैं कुछ देर बाद, फिर बहुत देर बाद फिर कॉल आया, तो मैंने बड़ा इरिटेट होकर उठाया, मैंने कहा इतनी बार कॉल कंपनी क्यों कर रही है, बात किया जाए, क्या बात है। जब उठाया तो मतलब सरप्राइज, अरे ये तो केबीसी का कॉल है, मैं कंटिन्यूअसली कट कर रही थी उससे। फिर तो मैम बस प्रोसेस आगे बढ़ते रहे, मैंने एक एक स्टेप क्वालिफाई करते रहे मैम। हॉट सीट से पहले मैम हॉट सीट से पहुंचने से पहले हमको 7 स्टेप क्वालिफाई करने थे, तो वो सबकी ब्लेसिंग से मेरे अच्छे से क्लियर हो गए, और हॉट सीट भी मिल गई और करोड़पति भी बन गए। हाँ, बट वो करोड़पति की जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी आपकी। इट नॉट ओनली कि को करोड़पति की जर्नी थी, बट द वे यू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड द वे यू हैंडल दोस क्वेश्चंस वाज, एंड द वे यू हैंडल दैट प्रेशर वाज वेरी वेरी नाइस। एंड आई थिंक वो आपकी लाइफ ने आपको 11th में प्रिपेयर कर दिया था उसके लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग। आई थिंक वो जो आपके साथ 11th में हुआ, सडन लॉस, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, तो आई थिंक वो पूरी प्रिपरेशन आपके, आई थिंक उस जर्नी में बहुत काम है मैम। वो या फिर बोल सकते हैं कि सोसाइटी से इतना ज्यादा इंटरनल मोटिवेशन मुझे मिल चुका था कि अब तो लाइफ में कुछ करना है तभी कुछ हो पाएगा। बिकॉज मैम एक ऑनेस्टली एक रियलिटी है लाइफ की, कि अगर आपके संग कभी भी कुछ भी ऐसा चैलेंज आता है
तो सोसाइटी थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड से हाँ हाँ देखती है बिल्कुल आपको, है ना? तो ऐसे ही कुछ मेरे संग हुआ एक्सीडेंट के बाद, कहीं ना कहीं इधर उधर से वैसी बातें चलने लगी नेगेटिव एटीट्यूड वाली। तो मुझे बड़ा एक चीज क्लियर थी कि लाइफ में अगर अपने आप को सरवाइव रखना है, खुद को सरवाइव करना है, तो भाई स्टडी तो करनी पड़ेगी और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पावर आपके हाथ में हो। तो बस ये सारी चीजें थी और सोसाइटी का बातें इंटरनल मोटिवेट करती रही, उन सब की वजह से ऐसा हो पाया। और कोई कोई और एक मैसेज किसी हमारे, बस हम बहुत जल्दी, बहुत करीब, टाइम खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी करीब पहुंच रहे हैं, कोई ऐसा इंस्पायरिंग मैसेज या कोई और चीज जो आपको लगता है कि इस जर्नी में आपकी सारी क्वालिटीज, आप बहुत इंस्पायरिंग हो, आपकी सारी क्वालिटीज, चाहे वो रेजिलेंस है, चाहे वो ऑनेस्टी है, चाहे वो सॉरी कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मुझे स्टूडेंट्स या टीचर्स से शेयर करनी चाहिए, कुछ रह गया है तो, अगर कवर करने के लिए तो करना चाहोगे आप कुछ? वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने बताया है, लेकिन फिर भी अगर किसी की, आप लोगों में से किसी की कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो। मैं देखती हूँ Q&A में किसने कुछ पूछा है। हाँ, लेकिन एक चीज है मैम, हाँ बोलो बेटा। लाइफ में मतलब अगर मुझे लगता है हम हमेशा अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे ना, तो चैलेंज कितने भी है हमें उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर टारगेट हमारा क्लियर कि हमको बिल्कुल करना सही। क्या है। यस, या सो थैंक यू हिमानी एंड थैंक यू चेतना फॉर मेकिंग दिस Thank you. पॉसिबल। आप दोनों आए, आपने अपना समय दिया, और अब मैं करण को हैंड ओवर करती हूँ ताकि वो इस वेबिनार को का एंडिंग कर सके। थैंक यू सो मच। ओके, ओवर टू यू करण। Thank you. Thank you, Ila ma'am. Thank you, Himani ji. हाँ जी, So थैंक यू सर। today, I, Karan Tapish, on behalf of the entire fraternity of Vidya family and my audience here, extend an extremely hearty vote of thanks to Miss Himani for sharing with us your learnings, thoughts, opinions, and even your aspirations today. It is my absolute privilege to propose a vote of thanks to close this webinar. Ma'am, your words and your thoughts have been awe-inspiring. The idea that as educators, compassion must not be forgotten. That very thought, I believe, has led to this journey, and that is not only changing lives, but shaping young minds one matric at a time. Today, I would like to quote Sir Richard Courant, the great mathematician. The basic elements of math are logic and intuition, analysis and construction, generality and individuality. What a perfect foundation for teaching humanity, contrasting yet complementary. The thought of not just accommodation, but understanding the principle that there's a wide spectrum of thoughts, opinions, and people, but everything and everyone must be in harmony at the end of it, despite differences. Thank you, ma'am, for your advice to Vidya that will stay with us in times to come. I would also like to take this opportunity to thank Priyanka ma'am, Snehata ma'am, and our tech support, Mehla ma'am, for the perfect logistic and organizational support and guidance she has extended to all of us to ensure the successful conduct of this event. Finally, I wish to express my gratitude to our chairperson, Rashmi ma'am, and our principal, Ila ma'am, for their unconditional support in this endeavor. This is the first session of the year, and those who have missed this episode may feel free to watch the same on our YouTube channel, and shall be back again every month with many more stories and personalities. Thank you, everyone. Thank you for such an inspiring show, ma'am. Yeah, thank you sir।